मुल्क में अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए झूठ का डटकर मुकाबला करना और सच को पूरी कुव्वत के साथ बिरादरान वतन के सामने लाना होगा। इसी सूरत में मुल्क में नफरत की सियासत का मुकाबला किया जा सकता है और इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी जुहदकार डॉक्टर राम पुनियानी ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। To which I will refer as the Vienna Convention. According to the application of India, and I quote, ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है तो पूरे मुल्क की निगाहें इस वक्त कुलभूषण जाधव मामले पर end of quote. Accused of performing acts of espionage and terrorism on behalf of India and sentenced to death by a military court in Pakistan in April 2017. As is usual, I shall not read the introductory paragraphs of the judgment, which set out the procedural history of the case and reproduce the submissions of the parties. Nor shall I read the paragraphs which describe the factual background to the case. I shall also omit or summarize some paragraphs of the judgment. The full text of the judgment will, of course, be available at the close of the sitting. I shall accordingly begin reading of the judgment at paragraph 33. With regard to jurisdiction, India seeks to found the court's jurisdiction on Article 36, paragraph 1 of the statute and on Article 1 of the optional protocol to the Vienna Convention on consular relations concerning the compulsory settlement of disputes, to which I will refer as the optional protocol. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since 28 December 1977 and 14 May 1969, respectively. They also were, at the time of the filing of the application, parties to the optional protocol without any reservations or declarations. The court noticed that Pakistan has not contested that the dispute related to the interpretation and application of the Vienna Convention and that the present dispute concerns the question of consular assistance with regard to the arrest, detention, trial, and sentencing of Mr. Jadhav. The court also noticed that in its application, written pleadings, and final submissions, India asks the court to declare that Pakistan has violated Mr. Jadhav's, and I quote, elementary human rights, which are also to be given effect as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, end of quote. The covenant entered into force for India on 10 July 1979 and for Pakistan on 23 September 2010. In this respect, the court observes that its jurisdiction in the present case arises from Article 1 of the optional protocol and therefore does not extend to the determination of breaches of international law obligations other than those under the Vienna Convention. This conclusion does not preclude the court from taking into account other obligations under international law insofar as they are relevant to the interpretation of the Vienna Convention. In light of the foregoing, the court finds that it has jurisdiction under Article 1 of the optional protocol to entertain India's claims
based on alleged violations of the Vienna Convention. The court now turns to the admissibility of the application. Pakistan has raised 3 objections to the admissibility of India's application. These objections are based on India's alleged abuse of process, abuse of rights, and unlawful conduct. The court addresses each of these objections in turn. In its first objection to the admissibility of India's application, Pakistan asks the court to rule that India has abused the court's procedures. Pakistan advances 2 main arguments to this end. First, it alleges that when requesting the indication of provisional measures on 8 May 2017, India failed to draw the court's attention to the existence of a constitutional right to lodge a clemency petition. Secondly, Pakistan submits that before instituting proceedings on 8 May 2017, India had failed to give consideration to other dispute settlement mechanisms envisaged in Articles 2 and 3 of the optional protocol. The court observes, in relation to Pakistan's first argument, that in its order indicating provision. तो इस वक्त की बेहद अहम खबर कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला सुनाया जा रहा है और आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक बरकरार है। यहां आपको यह भी बताएं कि वियना कन्वेंशन का जो जज है उन्होंने खासतौर से जिक्र किया है कि किस तरह पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की है। हमारे साथ मुंबई से हमारे साथी सर्वेश मौजूद हैं जो कि कुलभूषण जाधव के घर के बाहर का नजारा हमको बताएंगे। कुलभूषण, सभी की नजरें इस वक्त वहां टीवी पर लगी हुई है, ताजा मामला आपसे जानना चाहेंगे सर्वेश। सर एक मिनट कर दी। जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरी तरह से खुशी का माहौल है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला आने के पहले यहाँ पर पूजा किया गया है, जिससे किस तरह से विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का यहाँ पे पूजा किया गया है, आरती की गई है ताकि फैसला जो है कुलभूषण जाधव के फेवर में आए, भारत के पक्ष में आए। जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला फिलहाल कुलभूषण जाधव के पक्ष में लिया है, 16 जजों में से तकरीबन 15 जो जज थे वो भारत के पक्ष में नजर आए। अब इस फैसले से एक चीज तो साफ हो गई है कि जो अब तक लगातार भारतीय दूतावास से जो अपना पक्ष रखने के लिए कुलभूषण जाधव को जो मौका नहीं मिल रहा था, अब इस फैसले के बाद कुलभूषण जाधव का पक्ष रखा जाएगा और आगे चल के जरूर कुछ न कुछ अच्छी उम्मीदें जो यहाँ से उनके दोस्तों की जुड़ी हुई हैं वो पूरी तरह से सफल होंगी। पहली इस खुशी को लेकर पूरी तरह से मुंबई में तमाम जो भी इनके दोस्त हैं, खुशी का पूरा यहाँ पर माहौल है। तमाम जो भी दोस्त हैं यहाँ पर पूजा पाठ करके यहाँ पे गए हुए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी सर्वेश, जिस तरह से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर की रिसाई नहीं दी है, इन तमाम चीजों को भी आईसीजे में साफ तौर पर नोट किया गया है, तो राहत की खबर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए कि इस मामले में फैसला जो है वो काफी अहम रहेगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें 3 साल पहले की, जब 2016 में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में लिया था, तब से लेकर आज तक तकरीबन 3.25 साल का वक्त बीत चुका है। 2 चीजें इसमें बहुत अहम थी जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार रोड़े अटका रहा था। एक तो उन पर जो एक रॉ के एजेंट का एक
ठप्पा पाकिस्तान जी, की ओर जी, से जी। लगाया गया था। और दूसरी बात सबसे अहम ये थी कि जो वियना संधि है जी, जी। भारत की, उस वियना संधि के खिलाफ पाकिस्तान जो लगातार अपनी कदम आगे बढ़ा रहा था। और इसी संधि को लेकर जो पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज ने सबसे पहले इस पहल को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गई थी। और तब कहीं जाकर ये मामला सर्वेश इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर कुलभूषण जाधव को जो काउंसलर की रिसाई है वो दी जाएगी। बेहद अहम खबर तमाम हम अपने नाज़रीन को दे दें। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है। कुलभूषण की फांसी पर रोक जो है वो बरकरार है। और साथ ही साथ बेहद अहम खबर ICJ की कानूनी मुशीर रीमा ने ट्वीट करके ये बताया है कि हिंदुस्तान काउंसलर रिसाई दी जाएगी। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, यानी दुआएं रंग ला रही हैं। सर्वेश, जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। और इसका सबसे करारा झटका अगर कहें तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान को एक तमाचा है। भारत का बहुत बड़े पैमाने पर भारत को जीत मिली है। और इंटरनेशनल कोर्ट की जिस तरह से भूमिका रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर भारत ने अपना रुख किया था, उस कदम की भी एक बड़ी जीत कही जा सकती है। अब पूरा दारोमदार इस पर होगा कि जो भारतीय कुलभूषण जाधव जो नागरिक हैं हमारे भारत देश के, उनका पक्ष भारतीय दूतावास की तरफ से जितने भी एडवोकेट होंगे, जितने भी काउंसलर होंगे, वो किस तरह से रखते हैं। और कोशिश यही होगी कि उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया जाए। सर्वेश, क्या वहां हम किसी से बात कर सकते हैं? इस वक्त उनका जो रिएक्शन है वो हम डायरेक्ट अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, अगर वहां कोई मौजूद हो तो। जी, यहाँ पे कुछ दोस्त लोग तमाम मौजूद जरूर हैं, लेकिन आरती करके अभी यहाँ से निकले हैं। सभी मीडिया से वो रूबरू हो रहे हैं एक एक करके। हाँ। काफी यहाँ पर मीडिया का हुजूम जमा हुआ है। मीडिया की तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो लगातार बातें कर रहे हैं अब तब उनके कुलभूषण जाधव के तमाम दोस्तों से। यहाँ पर एक दाईं तरफ में एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, कि कुलभूषण जाधव के जो दोस्तों की तस्वीरें हैं कि किस तरह वो इस इलाके में रहते थे, उनके तमाम जो दोस्त हैं, उन फोटो को देख सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ पर दीवारों में बड़े पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है उनके। ये वही दोस्त हैं जो पिछले 3.25 साल से लगातार यहाँ उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भारत लाने के लिए एक जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जी सर्वेश, जिस तरह से लगातार आप इस मामले को कवर करते रहे हैं, वहां पर आपकी लोगों से मुलाकात होती रही है, आज वो पल आ गया है जिसका लगातार इंतजार किया जा रहा था, एक लंबी लड़ाई। जी बिल्कुल, अगर बात करें 4.25 साल का वक्त कोई कम नहीं होता है। अगर आदमी अपने देश की जेल में रहे तो उसे कम से कम इस बात की जरूर इत्मीनान होता है कि वो अपने देश में कैद है भले, लेकिन एक पराये जेल में, वो भी पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के जेल में कैद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की जेल को लेकर अक्सर ये कहा जाता है, मुंबई शहर में अब तक तकरीबन ऐसे 2 से 3 बड़े मामले देखे गए हैं जो तकरीबन 5 से 6 साल बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की मेहनत के चलते वहां से छूट कर आए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा हामिद अंसारी जो मुंबई के यारी रोड इलाके में रहता था। हालांकि कुलभूषण जाधव का मामला हामिद अंसारी से हटकर जरूर है, लेकिन लड़ाई पूरी तरह से भारत सरकार की बात करेंगे वो उन्होंने पूरी तरह से जारी रखी। और ये एक तरह से बहुत बड़ी जीत है। अब ये देखना होगा कि जो भी काउंसलर होंगे कुलभूषण जाधव के भारतीय दूतावास से जो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, वो किस तरह से अपना एक बड़े पैमाने पे पक्ष रखते हैं। तो पूरी तरह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इनके एक दोस्त। जी जी जी, तो नाज़रीन, लगातार हमारे साथी जो है सर्वेश, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो वहाँ का जो नज़ारा है जाधव के घर का वो लगातार हमारे सामने पेश भी कर रहे हैं। सर्वेश, जिस तरह से हम ये भी देखते रहे हैं कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफी मजबूती से अपना पक्ष रखा था, एक जो सामना किया था तमाम तर चीजों का, वो काफी मजबूत रहा है हिंदुस्तान का। अब बात करेंगे, 1 मिनट आइए ना, 1 मिनट खाली प्लीज 1 मिनट प्लीज आइए। जी, हमारे साथ कुलभूषण जाधव के इलाके में रहने वाले, उनकी जो लड़ाई लड़ने वाला जो ग्रुप है, उनके एक सदस्य हैं। आपका नाम? संगीता। बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में पहला फैसला
कुलभूषण जाधव फेवर में आया है कि अब उन्हें भारतीय दूतावास से जो उनकी लड़ाई लड़ सकें वो काउंसलर प्रोवाइड की। सर्वेश आपके पास हम आएंगे, अब आपके पास हम आएंगे हमारे साथ। इतने सालों बाद हमें बहुत खुशी हुई है, हमारी तरफ से फैसला आया, वो हम बहुत खुश है। अब तो हमारे साथी जो हैं शैलेंद्र वांगू भी दिल्ली से मौजूद हैं। चलिए शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, हिंदुस्तान के लिए अहम खबर, बड़ी अहम लड़ाई हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में जीती है। शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे हिंदुस्तान के लिए अहम खबर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 18 बार हमारी रिक्वेस्ट को, हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। भारत ने 18 बार काउंसलर एक्सेस की मांग की थी, पाकिस्तान ने उसको ठुकराया। वही आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साफ तौर पर कहा है कि कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अब जल्द ही कुलभूषण जाधव तक पहुंच होगी और भारतीय अधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे समझने के लिए कि कुलभूषण जाधव किस तरह से पहुंचे पाकिस्तान ईरान के रास्ते और किन लोगों ने उनको अगवा किया था। तमाम जो सवाल है उन पर से पर्दा हटेगा। और वहीं साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो फांसी की सजा सुनाई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। यानी कि एक बार फिर उस पर विचार करे पाकिस्तान की जो ये फैसला है वो कितना सही है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट पर भी। तो और ये भी एक बड़ी राहत की बात है कि कोर्ट आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती, जब तक रिव्यू पूरा नहीं होता है, तब तक कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट ना किया जाए, उनको फांसी सजा ना दी जाए। तो ऐसे में एक राहत की बात है भारत के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक काफी हद तक भारत के जो मांग है उसको माना है। लेकिन भारत की जो उम्मीद थी कि कुलभूषण जाधव की रिहाई का आदेश होगा आईसीजे से, वो नहीं हुआ। लेकिन जो मांग थी लगातार भारत की काउंसलर एक्सेस को लेके, वो जरूर भारत को मिल गई है। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार आप इस न्यूज को कवर करते रहे हैं, हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी थी और अपना पक्ष रखा था। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हिंदुस्तान ने अपनी लड़ाई बहुत सही से लड़ी थी और जो अपना पक्ष था, जो अपने दलीलें थी, वो मजबूती के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखी थी। अब से कुछ देर पहले ही फॉर्मर EAM यानी कि फॉर्मर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी को भी और हरीश साल्वे जिन्होंने केस को लड़ा था उसके लिए भी। उन्होंने कहा है कि ये भारत की बड़ी जीत है। जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी उस वक्त भी वो उस मामले को काफी करीब से देख रही थी और उनकी मुलाकात कुलभूषण जाधव की पत्नी और उनकी मां से भी हुई थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा रिलीफ तो है भारत के लिए कि अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाता तो शायद पाकिस्तान भी जल्दबाजी में फांसी की सजा को एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन अब ऐसे में राहत की बात यह है कि फिलहाल कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई है जब तक उनकी दी हुई सजा को दोबारा रिव्यू ना किया जाए। और साथ ही साथ भारत के लिए बड़ी राहत यह भी है कि काउंसलर एक्सेस देने को कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्द ये मुमकिन हो पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि आज अब से करीब 1.5 घंटे बाद लंदन में हरीश साल्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो इसके असल मायने समझा पाएंगे, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर राहत मिली है तो किस तरह से भारत को इस पूरे मामले में राहत आज मिली है। अच्छा शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं, चाहे मुंबई दहशतगर्दाना हमलों का मामला रहा हो या हाफिज सईद या इस तरह के जो भी मामले रहे हो, पाकिस्तान पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है। अपनी जो मजबूती है हिंदुस्तान को वो हमेशा बरकरार रखनी होगी और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान का सबसे पहला जो अक्यूज था कि जो ये मामला है इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिसडिक्शन नहीं है, इस मांग भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ठुकरा दिया और ये कहा है कि इस पर पूरा का पूरा जुरिसडिक्शन बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, क्योंकि जिस तरह से वियना कन्वेंशन, वियना संधि का जिस तरह से उल्लंघन हुआ है उसको भी इस पर हाईलाइट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। उन्होंने माना है कि काउंसलर एक्सेस ना दे करके उन्होंने पाकिस्तान ने
जो वियना कन्वेंशन है उसका उल्लंघन किया है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे आपने कहा कि इसमें भारत को बहुत अलर्ट रहना होगा, भारत को कदम देख के रखना होगा आगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। इससे पहले सरबजीत का जो केस है वो भी हमने देखा था कि किस तरह से जेल के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो रवैया है इस पूरे मामले को देखकर वो देखना होगा आगे भारत को, और अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुलभूषण जाधव को जो है जल्द इंसाफ मिले और एक फेयर ट्रायल हो जिसमें सच सामने आए। और कुलभूषण जाधव जब मुलाकात करेंगे इंडियन डिप्लोमेट से, तब सच सामने आएगा कि आखिर कुलभूषण जाधव के साथ क्या कुछ बीता है और किस तरह से वो ईरान से पाकिस्तान पहुंच गए थे। जी शैलेंद्र, इस वक्त जो हमारे नाज़रीन अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि अभी तक इस मामले में जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने क्या कुछ कहा है, किस तरह से हिंदुस्तान के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे प्लीज। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पिछले 2 सालों से ये मामला सुन रहा था कुलभूषण जाधव का, उसने आज अपना फैसला सुनाया है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो बायलैटरल मुद्दे हैं उन पर उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जाधव को हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए काउंसलर एक्सेस के लिए, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान से कि वो रिव्यू करे अपने फैसले को, जो मौत की सजा सुनाई गई है उसको रिव्यू करे और रिकंसिडर करे, और तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी ना दी जाए, वो तब तक वो सस्पेंशन में रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान इफेक्टिवली रिव्यू नहीं कर लेता है और कि अपने जो वियना कन्वेंशन का जो संधि है जिसका वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, जब तक उसके मुताबिक ना दे दिया जाए काउंसलर एक्सेस भारत को, तब तक इस पूरे मामले पर पाकिस्तान आगे की कार्रवाई ना करे। तो कुल मिलाकर भारत के लिए बड़ी जीत है, आज का दिन काफी बड़ा है। और वही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके ये कहा कि भारत के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी को और हरीश साल्वे जिन्होंने इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ा था। जी शैलेंद्र, तमाम तर जो जिस तरह से आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं उससे हमारे तमाम नाजरीन जो हैं वो भी इस अहम मामले से बाखबर हो रहे हैं। हमारे साथ सर्वेश भी मौजूद हैं जो कि मुंबई से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू बता रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान को अलर्ट भी रहना होगा। आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जो आप माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके लिए अब आगे के लिए क्या कुछ? देखिए, इसमें सबसे अहम बड़ी बात होगी कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से बीजेपी की नई सरकार बनी है और जिस तरह से पाकिस्तान पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है, और जब से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं इमरान खान के आने के बाद, अभी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हमारी उनके कुछ दोस्तों से बात हुई कुलभूषण के आने के बाद, उनका साफ साफ ये कहना था कि इमरान खान के आने के बाद से उनकी कुछ उम्मीदें जरूर पहले के मुकाबले अधिक भरोसेमंद हुई हैं कि इमरान खान वेल एजुकेटेड हैं, भारत से लगातार क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मामला भारत की तरफ से रखा गया था, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने सबसे पहले कुलभूषण का मामला रखा था, उसके पहले एक और पाकिस्तान का मामला हामिद अंसारी केस रखा था, लेकिन कुलभूषण का मामला कुछ अलग पेचीदा होने के कारण पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि 10 से लेकर तकरीबन दर्जनों जो एलिगेशन है वो कुलभूषण जाधव पर लगाए थे। इसमें रॉ के एजेंट से लेकर गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान से होके पाकिस्तान में घुसने तक का आरोप लगाया गया था, और गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के, उकसाने के भी आरोप लगाए थे। तो इन तमाम आरोपों को लेकर पाकिस्तान को जिस तरह से भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में जिस तरह से घसीटा, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में सबसे पहला जो फैसला सुनाया था, सभी को याद हो गया कि पाकिस्तान की ओर से जो कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा जो मुकर्रर की गई थी, सबसे पहले उस फांसी की सजा को रद्द किया गया था। उसके बाद भारत की उम्मीदें और भी जागी, कुलभूषण के दोस्तों की और भी उम्मीदें जागी। लगातार यहाँ पर मुंबई शहर से, सबसे पहले मुंबई शहर से कुलभूषण जाधव के लिए जो दुआएं उठी, भगवान को प्रार्थना की गई। उनके तमाम जो दोस्त थे, बचपन के साथी थे, जिनकी तस्वीरें आप दीवार पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहां पर तस्वीर दिखाए, जो उनके बचपन के साथी हैं, जो उनके साथ खेलो कूदे हैं, बड़े हुए हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में रहे हैं।
तो ये दोस्त जो उनके लगातार इस मामले को लेकर फॉलोअप करते रहे, इसका एक बहुत बड़ा दबाव भी कहा जा सकता है, एक आशीर्वाद भी कहा जा सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट की जो भूमिका भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिस तरह से प्रखर रूप में पहली बार देखी गई, वो मामला है कुलभूषण जाधव का। और जैसे ही कुलभूषण जाधव की सबसे पहले फांसी की सजा रद्द की गई, उसको लेकर एक बड़ा कदम भारत सरकार को उठता हुआ दिखा और तब उम्मीद जागी कि कुलभूषण जाधव को किसी न किसी तरह से न्याय जरूर मिल सकता है। और अब दूसरी बार जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में एक नई फेवरिज्म कह सकते हैं भारत सरकार के पूरी तरह से पक्ष में जो फैसला आया है कि अब भारतीय दूतावास के जो तमाम जो काउंसलर होंगे वो कुलभूषण जाधव के पक्ष में खड़े होकर उनकी तमाम जो भी तकलीफें होंगी, जो अब तक उनकी तरफ से उन्हें बोला नहीं दिया जा रहा था, मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनका पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा था, तो तमाम ये सब दिक्कतें पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। अब खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव की जितनी भी बातें होंगी कि कुलभूषण जाधव वाकई भारत के नागरिक हैं या नहीं, उनके सबूत क्या हैं, वो कैसे उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया, कैसे उन्हें टॉर्चर किया, क्या क्या उन्होंने जो आरोप लगाए उनमें कितने तथ्य हैं, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो हमारा जो काउंसलर होगा कुलभूषण जाधव का, वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रखेगा। और इन तमाम सवालों के जवाब पाकिस्तान के जो काउंसलर होंगे उनको देने पड़ेंगे। जी सर्वेश। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, जिस तरह से फैसला सुनाया जा रहा है उसमें एक एक करके जो चीजें सामने आ रही है, काउंसलर रसाई दी जा सकती थी, एक खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान ने, तो ये एक शुरुआत से ही हिंदुस्तान को जिस तरह से कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना अहम माना जाए कि हिंदुस्तान की जो दलील थी, जो दावे थे, वो एक तरह से यहां पर कामयाब दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो तमाम दावे साबित हुए हैं कोर्ट में और कोर्ट ने उनको मान भी लिया है। वहीं पाकिस्तान ने जो दावे किए थे उनको कोर्ट ने नहीं माना है। सबसे अहम बात यह कि भारत ने ये कहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जो एक ट्रायल चला गया, मिलिट्री ट्रायल चला गया, वो ट्रायल सही नहीं है, वो फर्जी ट्रायल है और सीक्रेट तरीके से इसको चलाया गया, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए इस बिना पर उनको मौत की सजा सुनाना गलत है। तो कोर्ट ने ये मानते हुए साफ कह दिया आज अपने जजमेंट में, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करे, इफेक्टिवली इसको रिव्यू करे और तब तक कुलभूषण जाधव की फांसी जो है वो सस्पेंडेड रहेगी, उनको फांसी नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये कि जो भारत बार बार कहता आ रहा है कि वियना कन्वेंशन के तहत आपने कुलभूषण जाधव का काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है हिंदुस्तान को, जिस मामले को लेकर हिंदुस्तान ने 18 बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि आप काउंसलर एक्सेस दीजिए, लेकिन 18 की 18 बार पाकिस्तान ने ये काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देना होगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। इससे होगा ये कि अब कुलभूषण जाधव से इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं, वो मुलाकात कर पाएंगे, साथ साथ लीगल टीम उनसे मुलाकात कर पाएगी और जो तमाम ऐसे राज हैं जो जिन पर से अब तक पर्दा नहीं हटा है कि कुलभूषण जाधव को किस माहौल में ईरान से अगवा किया गया और कैसे उनको पेश किया गया पाकिस्तान में, कैसे उनको लाया गया वहां पे, इन तमाम पहलुओं पर अब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी इंडियन ऑफिशियल नहीं जानते हैं कि वो कहाँ है, वो किस हालत में है, उनका हेल्थ कैसा है। 2017 में उनकी मां और उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात हुई थी, तभी पता चला था कि कुलभूषण जाधव की सेहत कैसी है। लेकिन अब जो बदलने वाला है वो ये है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान को रिव्यू करना होगा अपने फैसले को लेकर, और तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं लगेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से अब काउंसलर एक्सेस मिलेगा, सारी चीजें क्लियर होगी, साफ होगी। अब तक पाकिस्तान इन चीजों से हिंदुस्तान के वक्त को दूर रख रहा था, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान भी गौर करे फांसी की सजा पर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कहना कि दोबारा गौर करे फांसी की सजा पर और अपने फैसले को लेकर, ये कहीं ना कहीं और साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा दी गई है एक फर्जी ट्रायल के बाद, वो सही नहीं है। इसलिए जरूरत है कि वो दोबारा इस पर विचार करे, दोबारा इसको रिव्यू करे और तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी ना दी जाए। और लगातार भारतीय कहता आ रहा है कि जब ट्रायल चलाया गया, कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया और साथ ही साथ कुलभूषण जाधव को उनकी मन मुताबिक, उनकी मर्जी के अनुसार उनके पसंद का वकील, डिफेंस का वकील भी उनको मुहैया नहीं कराया गया। तो एक तरह से कुलभूषण जाधव को फंसाने की जो कोशिश लगातार की जा रही थी, उस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पर्दा उठा दिया है। तो ऐसे में जो ये पूरा ट्रायल चला है और हालांकि भारत ने
ट्रायल चलने के बाद जो जजमेंट कॉपी है वो भी मांगी थी पाकिस्तान से, जो अब तक पाकिस्तान ने मुहैया नहीं कराई है। तो एक सीक्रेट तरीके से जो कुलभूषण जाधव के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान ने, वो आज एक्सपोज हो गया है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के ट्रायल चला के जस्टिस नहीं कर रहा है। बिल्कुल अपने तौर पर सारी कार्रवाई पाकिस्तान ने यहाँ की, हिंदुस्तान को एक्सेस नहीं दिया। कई चीजें जो उसके खिलाफ अब एक तरह से अदालत में खुद पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला पैदा कर चुकी हैं, जिसकी वजह से पहली कामयाबी हिंदुस्तान को यह मिली कि फांसी पर रोक बरकरार रखी गई है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है और काउंसलर एक्सेस अब मिलेगा और आगे कार्रवाई होगी तो सारी तस्वीर साफ होगी कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि यहां पर सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान करता रहा है। हिंदुस्तान ने जो चीजें रखी हैं सामने उसको रद्द करता रहा और हिंदुस्तान काउंसिल एक्सेस के लिए जो मांग रहा था एक्सेस वो नहीं दिया गया, जो कि उस पर भारी पड़ा है एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी तफसीलात के लिए। फैसला पढ़ा जा रहा है और भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। हमारे साथ सर्वेश भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल मुंबई में देखा गया और एक एक खबर जिस तरह से परत खुल रही है कुलभूषण के मामले में, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? लोगों को किसी हद तक कुलभूषण के मामले में फांसी का जो मामला है वो रद्द कर दिया गया है, कितनी राहत लोग महसूस कर रहे हैं? सर्वेश। जी बिल्कुल, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, इसके सामने जो अगरबत्ती जल रहा है। ठीक 6:30 बजे करीब जब फैसले की सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान यहाँ पर बाकायदा श्री गणेश की आरती की गई। तमाम यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कुलभूषण के, और साथ ही यहाँ पे जितने लोग थे आरती कर रहे थे। और आपको बता दें कि आज इस खबर पर सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि विदेश की मीडिया की भी बड़े पैमाने पर नजर है। कुल मिलाजुला कर जितने भी उनके दोस्त हैं लगातार आरती में यही फैसला कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि फैसला जो कुलभूषण के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है। उनकी जो मनोकामना है, जो प्रार्थना है, भगवान ने सुनी और इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके भारत के फेवर में अपना फैसला सुनाया। अब आगे की जो मुश्किलें होंगी मुझे नहीं लगता कि इतनी कठिन होगी, क्योंकि इस समय पाकिस्तान पर सिर्फ भारत का दबाव ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुल्कों के उस पर दबाव हैं, कई अन्य मामलों को लेकर भी। तो पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी तरह से दबा हुआ भी है। और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान है पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि चारों तरफ से उन पर एक दबाव की स्थिति बनी रहे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका एक गलत फैसला, उनकी गलत जो सोच होगी वो कहीं न कहीं जाकर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जो तमाम देश हैं उन पर भी ये एक असर करेगी। तो इमरान खान भी सोचते होंगे कि किसी तरह से इस मामले को निपटारा जाए। जिस तरह से पिछले कुछ 2 सालों में पाकिस्तान और भारत के बीच का पूरा माहौल रहा, उसको लेकर इमरान खान कई बार मीडिया के दबाव में एक तरह से और लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और जो दावे रखे जा रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट में, वो एक तरह से आज बहुत मजबूती से सामने रखे, जिसकी वजह से इस तरह का नतीजा सामने आ रहा है। वहां जो लोग मौजूद है, जो जाधव के जानने वाले हैं, जाधव के साथ एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है, किस तरह की चीजें सुनने और देखने को मिल रही है जाधव के बारे में, किस तरह का रिएक्शन लोग दे रहे हैं? देखिए, उनका तो साफ कहना है कि इस समय मुंबई के एनएम जोशी मार्ग में, जहां पर इस समय मैं जिस इमारत के नीचे खड़ा हूं, और इसी इमारत के ठीक सामने एक 3-4 मंजिला इमारत है, उसी में जाधव कभी रहा करते थे। उसके बाद जब वो नेवी ज्वाइन किए तो नेवी में ज्वाइन करने के बाद मुंबई के पवई इलाके में उन्होंने 2 BHK एक फ्लैट लिया था। उस फ्लैट में उनकी माँ, उनकी पत्नी रहा करती थी उसमें। लेकिन जिस दौरान 2016 में कुलभूषण जाधव को जब पाकिस्तान की ओर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब ये खबरें आने लगी तो उनका परिवार वहां से फिलहाल गांव की तरफ रुख कर गया। तमाम मीडिया का रुख उनके पवई वाले घर पर भी जरूर हुआ था, लेकिन उनके परिवार से कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन उनके तमाम जितने दोस्त थे जो एनएम जोशी लोअर परेल इलाके में जो उनके साथ जो बचपन बिताया था, उनके साथ जो पढ़ाई की थी, वो लोग धीरे एक एक करके सामने आने लगे, जिनमें एक नाम अरविंद सिंह का कह सकते हैं। वो उन्होंने पूरी एक मुहिम बनाई। उनके तमाम जितने भी दोस्त थे उन्होंने एक सर्कल बनाकर लगातार कुलभूषण जाधव के इस अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर वक्त वक्त पर अपना जो है अपनी मांग रखते रहे मीडिया के सामने, भारत सरकार के सामने। और
पूर्व जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले गई। सबसे पहले जो बड़ा झटका पाकिस्तान को था वो था फांसी की सजा जो रद्द की गई कुलभूषण जाधव की, और अब दूसरा झटका जो लगा है कि अब कुलभूषण जाधव को काउंसलर मुहैया हो पाएंगे। कुलभूषण जाधव के एक दोस्त है हमारे साथ, आपका नाम? वंदना पवार। वंदना जी, बताइए कि कितनी खुशी हुई है? पहला झटका तो पहले लगा ही था फांसी की सजा रद्द करके, अब दूसरा झटका भी लग गया है, काउंसलर मिल सकेंगे कुलभूषण जी को। एक्चुअली सच बात बोलूं, काउंसलर एक्सेस है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि वो कुलभूषण जाधव जी को मिलेंगे और हमको पता चलेगा कि वो कैसे है। लेकिन उतनी बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है जितनी आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान इसको कितना अमल करता है ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। आईसीजे की बात अभी तक पाकिस्तान ने कभी भी मानी नहीं है, तो मुझे डर है कि काउंसिलर एक्सेस भी उनको आगे जाके दिया जाएगा कि नहीं, अभी तक मैं नहीं बोल सकती कुछ। लेकिन थोड़ी बहुत राहत में से तो है, राहत है कि फांसी की सजा भी रोक दी थी, तभी भी खुशी हुई थी, और आज काउंसिलर एक्सेस दिया वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान। जी, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? देश के प्रधानमंत्री हैं तमाम। अपने मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार से यही कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों लड़े, हम उन्हें डायरेक्ट वापस नहीं ला सकते कि क्या जैसे अभिनंदन को लाया गया है वैसे कुलभूषण जाधव जी को नहीं लाया जा सकता क्या? क्योंकि अगर उनके माता पिताजी यहाँ पे सामने होते तो उनकी राय यही होती मेरे हिसाब से। आप कुलभूषण जाधव के परिवार के सभी लोग को जानते हैं, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता है आपको? अभी वो कहा है फिलहाल ये नहीं पता, क्योंकि उनको थोड़ा प्राइवेसी बहुत बुरे हो गए हैं। लेकिन माता पिताजी हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं उनको? 2 बच्चे, लड़का लड़की? लड़का लड़की। उनके कुलभूषण जाधव के माता पिता हैं, उनकी वाइफ है, एक लड़का एक लड़की है। बिल्कुल सर्वेश, एक तरह से लोगों में जिस तरह से जो 2 खबरें शुरुआत में लगातार आई कि फांसी रद्द कर दी गई है और काउंसलर एक्सेस उन्हें मिलेगा, यानी कानूनी लड़ाई नए सिरे से होगी। जो पाकिस्तान लगातार रोके रखा था वो अब नहीं रोक पाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ने एक तरह से यह मान लिया है कि जो कुछ हुआ इस बारे में बहुत कुछ गलत हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान खुद अब गौर करे कि फांसी की सजा क्यों दी जाए। अगर गौर करने वाला जुमला इस्तेमाल नहीं करते जज तो बात समझ में आती, लेकिन गौर करने की बात जज ने इसीलिए कही कि यहां पर गलत हुआ है, एक बार फिर गौर कर लीजिए ताकि आगे कोई गलती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। इस पूरे मामले पर फैसला पढ़ा जा रहा है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा और भी बहुत सी चीजें धीरे धीरे कर सामने आ जाएंगी, लेकिन एक जीत तय है कि हिंदुस्तान की जो दलीलें हैं, जो दावे हैं, वो एक तरह से साफ हो रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया कि फांसी की सजा रद्द हुई है, काउंसलर एक्सेस मिलेगा, कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। सारी सच्चाई जो कुलभूषण के साथ पूरे इस कार्रवाई के दौरान इतने सालों में हुआ है, वो कच्चा चिट्टा पाकिस्तान का सामने आएगा पूरी दुनिया के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।